सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यम् उदानतत्त्वशेषाणः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायाग्रस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वै पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अपि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिष्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्मत वसन्तो अस्यासि राज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्रविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिता कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अवध्नं पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या विषयस्य ये तस्माद् यज्ञः तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयागतः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यः पुरुषं व्यदधुः कतिदा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरोदरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजित्य धीरः नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते दाता पुरस्ताद् यमुदाचार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशतस्रः त्वमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय ॐ नमो नारायणाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपने अपने टेंपल प्रेसिडेंट श्रीमान सुमधुर प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। Hare Krishna. On behalf of ISKCON Bahrain, first of all, we thank all the devotees who are participating in today's program, and also we are very fortunate that His Grace Sarvabhauma Prabhuji is with us. Hare Krishna. So, how many of you are first time coming to the temple? Any devotees? Hare Krishna. How many of you noticed our signboard outside? So ISKCON Bahrain, and then what it says? The Indian
religious and social group. Yes? Have everybody read? So actually, social and religious, what is our combination in this movement, ISKCON movement in Bahrain? So we know that one cannot lead a life only socially, it's not possible. But the essence how to lead the social life religiously, that is we are the Indian religious and social group. So in our material world, anywhere, what do you understand by social life? In social life, basically, we have to serve somebody. The parents has to serve the children, children has to serve the parents, the employee should serve the boss should serve the client. If it doesn't the boss doesn't serve the client, then you will get lost. Correct? So service is there. This is social life. But always we look for a role model. Who is the best person I can look for service? So in Ramayana we learn that Bhakta Hanuman, Ramabhakta Hanuman is the exemplary for how to serve. So that is the reason in ISKCON this time we are arranging that how in society the best service can be done, and that service will please the Lord. So about Hanuman, Prabhu will explain for the 5 days. So we request all the devotees to come continuously for the 5 days, take advantage of this, and please don't only take prasadam at the end. Prasadam will be served in the parcel, but don't take only prasadam. What Prabhu will give the instruction during the class, please take that also with you. That will transform. That will transform. So that is the essence. Hare Krishna. Thank you very much. धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. Hare Krishna, हरे कृष्णा. Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा. Krishna Krishna, हरे हरे. Hare Hare, हरे राम. Hare Rama, हरे राम. Hare Rama, राम राम. Rama Rama, हरे हरे. Hare Hare. तो प्रार्थना में भाग लीजिए. नमो विष्णुपादाय Namo Vishnupadaya, कृष्ण पृष्ठाय भूतले Krishnaya Bhutale, श्रीमते भक्ति वेदांत Srimati Bhakti Vedanta, स्वामिनिति नामिने Swamiti Namine, नमस्ते सरस्वती देवे Namaste Saraswati Devi, गौरवाणी प्रचारिणे Gauravani Pracharine, निर्विशेषा शून्यवादी Nirvishesha Shunyavadi, पाश्चात्य देश तारिणे Paschatya Deshakarine, गुरवे गौरचंद्राय Guruve Gaurachandraya, राधिकाय तदालये Radhikaye Pradaye, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय Krishnaya Krishna Bhaktaya, तद्भक्ताय नमो नमः Bhaktaya Namo Namaha, ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya, ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya, कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya, देवकी नंदनाय च Devaki Nandanaya cha, नंद गोप कुमाराय Nanda Gopa Kumaraya, गोविंदाय नमो नमः Govindaya Namo Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य Jai Shri Krishna Chaitanya, प्रभु नित्यानंद Prabhu Nityananda, श्री अद्वैत गदाधर Shri Advaita Gadadhara, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda, हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम Hare Rama, Hare Rama, राम राम हरे हरे Rama Rama, Hare Hare, रामं रामानुजं सीतां Ramam Ramanujam Sita, भर्त भर्त अनुजं Bharta Bharta Manujam
ध्वजम् सुग्रीवं वायुसूनं च सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः मनुज्वं मारुतुल्यवेगं मनुजवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं इंद्रियामुनियामुनिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामदूतं शिरसे नमामि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब श्रद्धा से राम भक्त हनुमान के चरित्र को सुनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस केंद्र पे पधारे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस्कॉन के पदाधिकारियों का, मैनेजमेंट का, जिन्होंने आप सबके हित के लिए और हमको ये सेवा का शुभ अवसर दिया है। राम भक्त हनुमान, वैसे प्राय लोग कहते हैं कृष्ण भावनामृत संघ में भगवत गीता का ही प्रचार होता है, फिर हनुमान की कथा आप कहां से बीच में लाए। तो हम कहते हैं भगवत गीता के पहले पृष्ठ के ऊपर जहां रथ अर्जुन का खड़ा है, उसके ऊपर ध्वजा है, उसके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। वैसे पुराने जमाने में ध्वजा के ऊपर योद्धा को पहचाना जाता था, योद्धा की पहचान ध्वजा से होती थी। तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर भगवत भक्त हनुमान जी बैठे हैं और कपि हैं, तो इसलिए एक नाम अर्जुन का है कपिध्वज। अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज, इसका मतलब जिसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी विराजमान है। तो जो हनुमान त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में थे, वो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन और उनके अपने भाई भीमसेन वायुपुत्र की सेवा के लिए अर्जुन की ध्वजा में बैठ के अपना कार्य कर रहे थे। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कृष्ण भावना अमृत संघ का मूल ग्रंथ भी कहा जाए, श्रील प्रभुपाद के जीवन का अधिकांश समय श्रीमद् भागवत को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में विश्व को देना है। उसके 5वें स्कंद में हनुमान जी की प्रार्थना के 8 श्लोक हैं, जो किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी बड़ी अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन उन श्लोकों का भी श्रवण करेंगे भागवत के अंदर से। हनुमान जी, हम नवदा भक्ति का साधन, हमारा साधन नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति का साधन करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम वंदनम पाद सेवनम, फिर दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें दास्य भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी। बाकी सब भक्तियां अपनी जगह में है, लेकिन दास हम सब हैं। हमारे सबके नाम के पीछे दास लगता है। तो क्योंकि हमारे नाम के पीछे दास लगता है, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। तो दास भक्ति करने के लिए आचार्य हनुमान जी के चरित्र को समझना भी हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी का प्रकट किष्किंधा कांड में होता है, जहाँ राम जी का लक्ष्मण का परिचय सुग्रीव से कराते हैं। वह हनुमान का पहले दर्शन होता है या प्रकट होता है किष्किंधा कांड में। उसके बाद पूरा कांड, सुंदर कांड हनुमान जी के पराक्रम का और सुंदरता का है। ये सुंदर कांड पूरा हनुमान जी की महिमा का कांड है। और फिर युद्ध कांड के अंदर हनुमान जी का पराक्रम अपनी जगह पे बड़ा अद्भुत है। तो ऐसे इन 3 जगहों पे हनुमान जी का बहुत सुंदर वर्णन है। और फिर भगवान श्री रामचंद्र के राज तिलक के बाद हनुमान जी सुग्रीव के साथ गए ही नहीं। सुग्रीव को तो भगवान ने किष्किंधा का राजा बनाया, एक पद दिया। विभीषण को लंकेश बनाया, एक पद दिया। हनुमान जी ने कहा मुझे 2 पद चाहिए। भगवान ने कहा बड़ा लालची हुआ, सब एक मांगते, ये 2 मांग रहा है, तुम्हें कौन से 2 चाहिए? बोला आपके दोनों चरण कमल मेरे को चाहिए, मैं यहाँ से अभी नहीं जाऊंगा। ये 2 पद ही मेरे लिए अब मेरे जीवन का लक्ष्य है।
और हनुमान जी को भगवान अपने पीछे, जब तक राम कथा होगी, राम का नाम गाया जाएगा, तब तक हनुमान इस धरती के ऊपर भक्तों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो चिरंजीवी में है, आज भी प्रकट रूप में किमपुर श्लोक में रह रहे हैं, और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जैसे भागवत कथा जहाँ होती है भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसे राम कथा में भगवान के भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद भाग्यशालों को प्राप्त होता है। तो हनुमान जी, हनु शब्द, वैसे हनु शब्द ठोड़ी को कहा जाता है, चिन्ह को कहा जाता है, और मान का मतलब टूटा हुआ। तो हनुमान का जबड़ा टूटा हुआ है, इसलिए उसका नाम हनुमान है। ये तो संस्कृत में इसका अर्थ है। और दूसरा हनुमान, जो अपना अभिमान न करे, जो निम्रता वाला हो, दास भाव में परिपूर्ण, वो हनुमान। जिसने अपने अहंकार और मान का दमन कर दिया हो और निर्मल भाव से, दास भाव से सेवा में संलग्न रहे, वो हनुमान। तो ये नाम हनुमान जी का कैसे हुआ, हनुमान के जन्म की कथा कैसे है? वैसे सामान्य रूप से रामायण के अंदर जहां पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा था दशरथ महाराज का, वहां सारे देवता आए थे। तब सबने ब्रह्मा जी को घेर के कहा कि आपने ऐसे आशीर्वाद रावण को दे दिए हैं, कुंभकर्ण को दे दिए हैं, अब वो अजय विजय हो गए हैं और चारों ओर न साधु की सेवा करने देते हैं, न ब्राह्मण की सेवा करने देते हैं, न गाय की सेवा होती है, न वेद का पाठ होता है। तो ब्रह्मा जी को घेर के बैठे थे, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो सब देवताओं ने भगवान विष्णु को कहा कि अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो भगवान ने कहा, मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ यज्ञ का भाग, मैं इसमें यज्ञ में अपने आप को देने आया हूँ। अभी इस यज्ञ में मैं दशरथ के घर में अपने आप को 4 रूप में प्रकट करूंगा, और आप सब देवता भी मेरी सेवा और सहायता के लिए वानर और ऋषि में प्रकट हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो अपने अंश से जामवत जी को पहले ही भेज दिया। तो जामवत जी ब्रह्मा जी का अंश है। तो हनुमान जी वायुपुत्र, वायुदेव ने कहा मैंने भेजा है, लेकिन हनुमान जी के लिए वायुपुत्र के नाम से तो प्रसिद्ध है हनुमान, पवन सुत के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन रुद्र अंश भी हनुमान को कहते हैं, शंकर जी का अंश है। तो ये हनुमान जी शंकर जी का अंश कैसे है? अगर वो शंकर जी का अंश है तो शंकर जी तो एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। रुद्र संप्रदाय शंकर जी से शुरू होता है, भागवत शंकर, और शंकर जी का कैसे अंश है हनुमान जी? तो भागवत में जहाँ समुद्र मंथन का वर्णन है 8वें स्कंद में, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उनमें से 3 मुख्य हैं। लक्ष्मी देवी जिसने नारायण का वर्णन किया, कामधेनु गाय जो ब्राह्मणों ऋषियों को दिया गया यज्ञ के लिए, और अमृत निकला वो देवताओं को दिया गया। लेकिन वहां एक देवता नहीं था। कौन देवता वहां नहीं था? शंकर महादेव नहीं थे। और जब अमृत का वितरण किया, मोहिनी मूर्ति का अवतार हुआ। तो शंकर जी को मोहिनी मूर्ति के दर्शन की अभिलाषा हुई। तो पार्वती को लेकर शंकर जी मोहिनी मूर्ति के दर्शन के लिए भगवान विष्णु को प्रार्थना करने लगे। तो विष्णु मुस्कुराए और एक बहुत सुंदर लड़की के रूप में वहां प्रकट हो गए, और शंकर जी उनकी ओर आकर्षित होकर उनके पीछे ऋषियों के आश्रम में भागने लगे। उस वक्त शंकर जी की शक्ति का हास हुआ, और सप्त ऋषियों ने उस शक्ति को एक घट में, एक मटके में, एक कलश में रख दिया कि आखिर शंकर जी का ये तेज है तो किसी स्पेशल काम के लिए आया होगा। और समय आने के ऊपर वायुदेव को ये कहा गया कि इस तेज को ले जाकर अंजना के उदर में स्थापित कर लो। तो शंकर जी के तेज से, सप्तऋषियों के प्रेरणा से वायुदेव ने उस शक्ति को अंजना के उदर में स्थापित किया। इसलिए हनुमान जी को रुद्र अंश कहा जाता है। अब अंजना कौन है, ये प्रश्न उठता है। अंजना एक अप्सरा ऋषियों की सेवा में
देवलोक में रह रही थी। संभवतः देवताओं के गुरु बृहस्पति की सेवा में थी और एक दिन जल भरने के लिए गई तो सामने से कुछ गंधर्वों को देखा तो उनको देखती रह गई और उसके मन में थोड़ा सा, देवताओं के देवलोक में काम वासना अपनी जगह पे है, भोग के लिए तो देवलोक में सब जाते हैं स्वर्ग में, तो उसको थोड़ा सा ऐसे भाव काम का आया। जल लेके देर से आई और आई तो अभी तक उसके दिमाग पे वो गंधर्वों का भाव था। वो ऋषि को ऐसे जैसे बंदर छेड़छाड़ करे ऐसे छेड़ने लगे तो ऋषि ने कहा तू बंदरिया की तरह क्या कर रही है, जाओ बंदरिया बन जाओ। तो अप्सरा को श्राप दे दिया। तो उसने हाथ जोड़ के कहा मुझे क्यों श्राप दे रहे हैं, कृपा करें मुझे क्षमा कीजिए। बोला मेरे मुख से अगर ये शब्द निकले हैं तो कोई उद्देश्य होगा। अब तुम इस वक्त केसरी नाम का एक महान प्रतापी वानर राज है, उसकी पत्नी के रूप में प्रकट हो जाओ और राम जी की सेवा के लिए राम भक्त को आप जन्म देने के बाद वापस अपने स्थान पे आ जाना। तो अंजना भी एक देवताओं के गुरु की सेवा में, ऋषियों की सेवा में देवलोक में रहने वाली देवी थी जो धरती पे थोड़े समय के लिए शराब के कारण आई थी। तो महाराज केसरी, इसलिए हनुमान जी का केसरी नंदन नाम है क्योंकि केसरी वानर राज का पुत्र था। अब एक प्रश्न और है कि वानर का अर्थ क्या बंदर होता है? इसमें शब्द नर है, वानर मानव जैसा। वैसे वानर उसको कहते हैं जो वनस्पति खाता है, वनस्पति खाता है मतलब फल फूल खाता है, उसको वानर कहते हैं। तो वानर किस वजह से कहते हैं? गिरिवासी को, जो पर्वतों में रहते हैं, गिरिवासी या वनवासी, जैसे वन मानस। तो ये एक जंगल में रहने वाली जाति है, लेकिन ये वेद पढ़ सकते हैं तो ये कोई पशु जानवर नहीं है, बंदर नहीं है। वानर का मतलब बंदर नहीं है संस्कृत में, मरकट का अर्थ बंदर है संस्कृत में। वानर का अर्थ है गिरिवासी या वनवासी। सो किष्किंधा का राज है ये। किष्किंधा तो अभी भी कर्नाटक में इस नाम से प्रसिद्ध है, आज भी है उधर। और हनुमान जी का जन्म एक दृष्टि से कहते हैं किष्किंधा में एक पर्वत है, आंजनेय पर्वत, वहां हुआ है। कुछ जगहों पे हनुमान के जन्म के और भी स्थानों का वर्णन शास्त्र में मिलता है। तो सबको सही मानना चाहिए क्योंकि हर कल्प में राम जी का अवतार होता है तो हनुमान जी का प्रकट होता है, तो स्थान का अंतर हो सकता है। तो इसको कहते हैं कल्प भेद से अलग जगहों पे हनुमान जी के प्रकट की भी आपको स्थान मिलेंगे। एक तो कथा यहां तक ऐसे भी है कि जब पुत्रेष्टि यज्ञ में कलश लेके महाराज दशरथ के यहाँ कलश निकला, तो वो जब महाराज दशरथ उस पायसम का, उस खीर का विभाजन कर रहे थे, तो कौशल्या जी के हाथ में एक टुकड़ा रखा था जो एक चील ने वहां से उठाया और भगवान की प्रेरणा से वो फिर वायुदेव के सहायता से अंजनी के गोद में आके गिरा। तो उसी अंश से जिससे रामचंद्र लोगों का हुआ है, तो भक्त का ऐसे जन्म की भी कथा किसी कल्प में हनुमान जी के प्रकट की ऐसी कथा का भी वर्णन मिलता है। और उसके बाद अब हनुमान का जन्म रुद्र अंश से हो गया, इसलिए उसको रुद्र अंश कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का अंश जामवन है तो शंकर जी का अंश हनुमान जी है। तो ये दोनों हमेशा, और तीसरा साक्षात शेष लक्ष्मण है, ये तीनों राम जी की सेवा में है। जामवत भी है, हनुमान जी भी है और लक्ष्मण भी है। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा, शंकर और शेष तीनों सेवा में एक समय में लगे हुए हैं। ऐसी मंगलाचरण में, सुंदरकांड में प्रार्थना भी ऐसी की गई है। और केसरी नंदन, अंजना पुत्र, पवन सुत, ये सब हनुमान जी के नाम हैं। जहां उत्तरकांड रामायण का है, रामचंद्र जी के राज तिलक के बाद का, तो बहुत से ऋषि रामचंद्र से मिलने के लिए आते हैं और रामचंद्र जी उनसे प्रश्न पूछते हैं। अगस्त ऋषि उनको उत्तर देते हैं, बाकी सब ऋषि आए हैं सत्संग के लिए।
तो बहुत से प्रश्नों में एक प्रश्न ये पूछते हैं, ये रामचंद्र जी पूछ रहे हैं और हनुमान जी सामने बैठे हुए हैं। रामचंद्र जी पूछते हैं कि मैंने हनुमान के बल को, वीर्य को, तेज को, बुद्धि को देखा है। जब ये सुग्रीव के साथ था तो फिर सुग्रीव बाली से भयभीत क्यों रहते थे? हनुमान अगर सुग्रीव के साथ था तो वो बाली से भयभीत क्यों होते थे? एक तो ऐसी भी कथा आती है कि बाली गर्जना करता हुआ ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया कि जो मेरे सामने युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति मुझ में आ जाए। अब वो इस भाव से वो जंगल जंगल में घूम रहा था, कौन आए मुझसे युद्ध करे। हनुमान जी एक जगह राम भजन कर रहे थे तो उसके भजन में विघ्न पड़ा। तो उसने कहा कि राम नाम जपो तो बल का अहंकार क्यों करते हो? बोला मैं राम नाम नहीं जानता हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। बोला मैं क्यों तुमसे युद्ध करूं, क्या जरूरत है मुझे युद्ध? नहीं, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। ठीक है, कल युद्ध करेंगे, हनुमान जी ने कह दिया। और हनुमान जी अभी बैठे राम नाम तक, ब्रह्मा जी आ गए आकाश में, कहते हैं हनुमान जी मेरे वरदान दिया हुआ है, आदि शक्ति उसमें चली जाएगी, तुम युद्ध मत करना। हनुमान जी के आप कहते हैं तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन है वो ललकार के गया है तो मैं कैसे मना करूंगा? उनको बहुत अहंकार भी है। आप कहिए तो आदि शक्ति चली जाएगी। बोला फिर एक काम करो, तुम 10 हिस्सा अपना शक्ति का 10% सिर्फ ले जाना, बाकी जो 90% शक्ति है वो आप रख देना, वापस आके उसको ले लेना। पर इतना मैं जरूर करूंगा। बाली ने ललकारा, हनुमान जी गए हाथ जोड़ के बैठे, देखा, देखते ही बाली के अंदर आदि शक्ति हनुमान जी की चली गई और बाली का शरीर ऐसे शक्तिशाली होकर फटने लगा। और उस वक्त ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, बोले भागो यहाँ से भागो। और बाली लड़ाई नहीं की, वहां से भागा, दूर गया तो ब्रह्मा जी से कहता ये मुझे क्या हो गया? बोला तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ? बोला आदि शक्ति मेरे अंदर जब उसकी आई तो मैं बहुत शक्तिशाली लग रहा था और फिर अचानक मेरा सब वो फटने लगा और मेरे को आपने कहा भागो, मैं भाग के आया, जीवन बचाया। बोला ये केवल 10% शक्ति लाया था, ये पूरी लाया होता और आधी तेरे अंदर आती तो तू कहाँ रहता? ये तो मैं उसको कहा था कि इतनी ही शक्ति लेके आए। तो बाली तो पहले ही भागा हुआ था। असल ये दूसरी कथा जब ध्यान में आती है तो फिर आखिर हनुमान जी के होते हुए सुग्रीव क्यों भयभीत था, ये प्रश्न पूछा। तब अगस्त ऋषि ने हनुमान के जन्म की कथा बताई और जन्म की कथा के समय बताया कि जन्म लेते हनुमान ने कहा भूख लगी, अंजना माँ ने कहा फल खाना। बोला फल कैसा होता है? तो उस वक्त सूर्य उग रहा था और बड़ा लाल लाल लग रहा था। बोला ऐसा होता है। बोला फिर ऐसा कहाँ ढूंढूं, यही खाता हूं। ये पहला भगवान राम का भक्त है जो एस्ट्रोनॉमर है, सूर्य के ऊपर गया। इससे पहले कोई नहीं गया था। ये सूर्य के ऊपर मुंह खोल के रवाना हो गया, रवि को फल समझ के आगे गया। सूर्य देव ने कहा ये हमारे मित्र वायु का पुत्र है, बच्चा है, चलो आओ इसको रथ में बिठा देते हैं। उसको जलाया नहीं और ये रथ में बैठा है अभी। तो राहु उस दिन उसको ग्रहण लगाना था सूर्य को। तो राहु जैसे आ रहा था तो इसने देखा ये सूर्य के ऊपर दूसरा कौन है झपट रहा है, सूर्य के ऊपर ग्रहण तो मैं लगाता हूं, ये कहां से आ गया? राहु भागते हुए इंद्र के पास चला गया और इंद्र को कहा कि मेरा काम है सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाना, ये आपने वरदान दिया, मेरी जगह पे कोई और राहु की जगह पे सूर्य को ही निकल जाना चाहता है। इंद्र वहां से ऐरावत के ऊपर चढ़ के आया और अब ऐरावत को देखा हनुमान ने तो बोला ये सफेद अच्छा फल लग रहा है। वो जैसे झपका ऐरावत की तरफ, वो भयभीत होके इंद्र ने अपना वज्र चलाया और हनुमान के जबड़े को लगा। हनुमान नीचे मूर्छित होके गिरा। वायुदेव ने उसको अपनी गोद में ले लिया और एक गुफा में वायुदेव को क्रोध आया कि मेरे पुत्र के ऊपर, अभी छोटा बच्चा है, इसके ऊपर ऐसा प्रहार किया है। वायु ने बहना बंद कर दिया तो सबकी हवा पानी बंद हो गई। देवता बड़ा त्राही करने लगे। सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोगों ने वायु पुत्र के ऊपर प्रहार किया है और वज्र से प्रहार किया है, इसलिए चलो वायुदेव को क्षमा याचना मांगे। तो चले, नहीं तो सारा संसार ही प्राणहीन हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी
सारे देवताओं के लोग के उस गुफा में आए हैं। पहले तो वायुदेव को कहा कि आप क्षमा कीजिए, देवताओं के द्वारा ये ऐसे हो गया, आपके पुत्र को हम वापस ठीक भी करते हैं। वायुदेव उनकी बात माना, हवा चलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं हनुमान जी आपको ये वरदान देता हूं कि ब्रह्मास्त्र मेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ब्रह्मास्त्र से आपको कभी भय नहीं होगा। सूर्यदेव ने कहा, मैं आपको 1% मेरे तेज देता हूं और तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे को मैं शिष्य के रूप में स्वीकार करके ज्ञान दूंगा और तुम्हें रोग भी नहीं लगेगा। और यम ने कहा, मेरे दंड से तुम्हारे को भय नहीं होना चाहिए। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र से भय नहीं होना चाहिए। सारे देवताओं ने इतने वरदान दिए हनुमान जी को। अब हनुमान जी केसरी के घर में आया, इतने सारे वरदान थे तो उधम मचाने लगा, शक्ति बहुत ज्यादा हो गई। कितनी शक्ति हो गई, कोई ऋषि बैठा हुआ पूजा कर रहा है तो उसको उठा के ऐसे ऊपर ले जाए, फिर नीचे लेके आ जाए। अब वो ऋषियों का सामान उठा ले। एक जगह एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य, उन्होंने मायापुर में कथा की थी, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। बहुत एक छोटा सा पुस्तक भी छपा था, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। उसमें लिखा है कि एक ऋषि के दरवाजा, एक तरफ 2 दरवाजे रखते हैं आपके यहाँ, पीछे एक दरवाजा रखा है, एक आगे से, भाई कहीं से इमरजेंसी में जाना पड़े तो 2 दरवाजे थे। तो सुबह 3:30-4 बजे हनुमान जी ने एक दरवाजे के ऊपर शेर को की पूंछ को हाथी के साथ बांध के खड़ा कर दिया। बेचारा ऋषि सुबह उठा के सवेरे बाहर जाना है, ट्रांसफर कॉल ऑफ नेचर, बाहर दरवाजा खोले तो शेर वो हाथी बंधा हुआ है, जा नहीं पा रहा है। तो दूसरे दरवाजे की तरफ गया तो उधर फिर और एक और बांध के दूसरे तरफ रखा है। तो बड़ा परेशान हुआ कि जाए कहां से बाहर कैसे निकले। तब ऋषियों ने कहा, देखो इसको किसी ऋषि का श्राप भी नहीं लगेगा, अब इसकी क्या जाए। तो कहा, अब एक इसको ऐसे करते हैं कि इसको कहो कि इसकी जो शक्ति है इसको भूल जाए, जब तक कोई याद नहीं दिलाए और भगवान की सेवा में काम नहीं आए तब तक इसकी शक्ति इसको भूल जाए, विस्मृति हो जाए। तो ऋषियों ने, अगस्त मुनि कहते हैं रामचंद्र, ऋषियों ने छोटे बालक की बहुत शिकायत उसके पिताजी से की। पिताजी बड़ा परेशान हुआ और पिताजी ने कहा, फिर इसको पढ़ने के लिए भेजो। तो एक दिन लेके गया सूर्यदेव के पास कि ये मेरा बालक है, आप इसको पढ़ाइए। सूर्यदेव ने कहा, देखो मेरे रथ के अंदर 70,000 वालकल्य ऋषि बैठते हैं जो वेद का पाठ करते हैं, यहाँ सीट एक भी नहीं है, तो आपकी एडमिशन बचेगी कहाँ पर, तो जगह ही नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं रथ के सामने, मैं आगे आगे पैदल चलूंगा, मुझे आप शिक्षा देना। बोला, तो पैदल चलेगा तो तेरा मुंह जो है मेरी, तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी तो मैं तेरे को कैसे पढ़ाऊंगा। हनुमान जी का, नहीं, मैं चलूंगा आपकी तरफ मुख करके, उल्टा चलूंगा। तो हनुमान 1 साल तक सूर्य के पास पढ़ने के लिए चले गए और उसको अपनी सारी शक्ति भूल गई। और सूर्य ने जब पढ़ा के पूरा किया तब कहा कि अब गुरु दक्षिणा दो। बोला, गुरु दक्षिणा में जो आपको चाहिए बोलिए, क्या लाके दूं। बोला, एक वचन दो। क्या वचन दो। बोला, सुग्रीव मेरा पुत्र है, तुम सुग्रीव का साथ कभी नहीं छोड़ना, ये वचन मेरे को दे दो। इसलिए हनुमान जी ने कभी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा सुग्रीव का सहायक रहे, क्योंकि सुग्रीव है सूर्य का पुत्र और बाली उसका भाई है इंद्र का पुत्र। ये दोनों देवलोक से ब्रह्मा जी ने धरती के ऊपर वानर राज को पुत्र के रूप में दिए थे। तो ऐसे अगस्त जी कहते हैं, उनकी सारी शक्तियां उनको भूली हुई थी। उनको शक्ति तो जामवंत ने याद ही तब दिलाई जब सीता की खोज के लिए 100 योजन समुद्र पार करना था। उससे पहले 2 कारणों से हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रभाव नहीं दिखाए, प्रकाश नहीं किया। एक तो पढ़ने के लिए चले गए थे और दूसरा ऐसे एक बार नारद जी हनुमान जी से मिलने आए। हनुमान बहुत सुंदर गाते थे और नारद जी ने वीणा अपनी रखी नीचे और गाना सुनने लगे। तो इतना सुंदर हनुमान जी ने गाया कि पत्थर पिघल गया और पत्थर पिघल गया और वीणा उसके साथ बहने लगी। जब बहने लगी तो उसने गाना बंद किया, पत्थर फिर सख्त हो गया और वीणा अटक गई। अब नारद कहता है, मेरी वीणा। बोला, मेरे घर चलो पहले पिताजी को, संत हो, तुम्हारे चरण मेरे घर में घूमने चाहिए।
अब घर में ले गया, घुमाया, उसके पिता को कहा देखो इसको बोलो वो मेरी वीणा अटक गई है, उसको निकाल के दे। पिता ने कहा बेटा ये कैसे क्यों किया? बोला इतना बड़ा संत आया था, मुझे गाने को कहा, मैंने बोला अपने घर में लाए, संत के चरण घूमने चाहिए, अपने घर में आ गया। बोला अब तो वीणा इसकी दे दो। बोला चलो फिर गाते हैं। बाहर आके फिर गाना शुरू किया तो पत्थर पिघलने लगे, वीणा निकली और नारद जी ने उठाई और चल दिए। तो ये बाल हनुमान की ऐसी बहुत पराक्रम है जिसका अद्भुत शास्त्रों में वर्णन है। तो अब यहाँ राम जी को बताया जा रहा है कि हनुमान के सारे बल होने के बाद भी सुग्रीव के साथ रहे, और रहे इसलिए कि उसने सूर्य को वचन दिया था, और बाली के से हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं थी, इसलिए हनुमान जी इस प्रकार का आया। राम ने कहा मेरे सामने ये पूरी लंका जला के आया था, इतने बड़े बड़े वीरों को मार के आया था, तो इसको ऐसे क्यों हनुमान के होते हुए सुग्रीव दर दर भटक रहा था? तो ये प्रश्न वहां उत्तर रामायण में आता है। तो राम जी के, ये हनुमान जी के जन्म का प्रसंग यहाँ अगस्त ऋषि के द्वारा श्रवण किया गया है। अब हनुमान जी के आज हम किष्किंधा कांड से शुरू करें कि सुंदर कांड से शुरू करें, क्योंकि दो जगहों में फिर हनुमान जी हमारे को राम जी की सेवा में, अभी तक राम जी की सेवा में नहीं मिल रहे हैं, अभी तक राम जी हनुमान जी के अपने प्रकट्य की बात चल रही है। सो हनुमान जी और 4 मंत्रियों के साथ सुग्रीव के साथ रह रहे थे, और ये सब रह रहे थे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर। ये ऋषिमुख पर्वत कभी आप दर्शन करने जाएं किष्किंधा में, तो किष्किंधा में एक तो पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण जी शबरी माता से मिले थे। शबरी का आश्रम है और पंपा सरोवर है। वहां तक अरण्य कांड चलता है, वन कांड चलता है। शबरी से मिलके भगवान रामचंद्र उसको दर्शन देके वहां से जैसे निकलते हैं किष्किंधा कांड शुरू होता है, और वहां से थोड़ा आगे चलेंगे तो अंजनीय पर्वत है ऊपर, हनुमान जी का जन्म स्थान है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी के दूसरे तरफ वो ऋषिमुख पर्वत है। ये है, कभी आप जाएं तो ये कर्नाटक में है ये जगह, हम्पी, जिसको वैसे हम्पी कहते हैं। तो वहां ये ऋषिमुख पर्वत है जहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठा। बोला वहां क्यों बैठा? पर उस पर्वत के ऊपर बाली नहीं जा सकता था। बाली क्यों नहीं जा सकता था? बोला मतंग ऋषि का श्राप था कि उस पर्वत के ऊपर आएगा बाली तो मर जाएगा। इसलिए सुग्रीव ने वहां अपने आप को सुरक्षित समझा, और वो कोई दूर नहीं है, वहां से थोड़ी दूरी पे बाली की राजधानी थी किष्किंधा की, लेकिन उस पर्वत पे नहीं जा सकता था बाली, ये मतंग ऋषि के श्राप के कारण। तो इसलिए ऋषिमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव हनुमान जी और 4 और साथियों के साथ बैठा हुआ था। और रामायण में हमको ये संकेत मिलता है कि आकाश मार्ग से जाती हुई सीता ने इन वानरों को देखकर अपने आभूषण नीचे फेंके थे कि कहीं राम जी इस रास्ते से आए तो उनको संकेत, उनको रास्ता पता लग जाए। तो वो आभूषण सुग्रीव के पास सुरक्षित पड़े थे। अब राम और लक्ष्मण दोनों जब चले हैं पंपा सरोवर से आगे, तो सुग्रीव आगे देखकर भयभीत हुआ कि कहीं बाली स्वयं नहीं आ सकता है, किसी मानव को उनको मारने के लिए तो नहीं भेजा। तो कहा हनुमान जी को कि आप जाके इनका परिचय लो, ये कौन है, क्या करने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके दोनों भाइयों के सामने आके और बोला इतना उत्तम संस्कृत में कि रामचंद्र बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि कोई पंडित भी इसकी भाषा में गलती नहीं निकाल सकता। पूछते आप कौन है, कहां से पधारे हैं, कहां जा रहे हैं। लेकिन राम जी ने उसको हनुमान की ओर देखा नहीं, लक्ष्मण को कहा इसको हमारा परिचय दे दो। तो लक्ष्मण कहते हैं हम दशरथ नंदन हैं, अयोध्या नरेश के पुत्र हैं,
और इस वक्त जंगल में ही बड़े भाई हमारे राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। और ऐसे हमारे साथ हमारी भाभी सीता थी, वो कहीं मिल नहीं रही, हम ढूंढते आए हैं इस रास्ते से। और कबंध नाम के एक देव पुरुष ने, जिसका हमने उद्धार किया, उसने कहा कि सुग्रीव से मित्रता करना। तो हनुमान समझ गए कि ये बाली के भेजे हुए नहीं है। तब हनुमान अपने असली रूप में आए, तब तक ब्राह्मण के रूप में थे। और तब राम जी को प्रणाम किया कि मैं सुग्रीव का सेवक हूं, आप चलिए सुग्रीव के पास ले चलता हूं, आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उनसे मित्रता कराना। तो यहाँ आचार्य के स्थान पे हनुमान जी सुग्रीव को भगवान राम के से मिलाने का काम कर रहे हैं। ये काम गुरुजनों का है, आचार्यों का है, जो विपत्ति में पड़े हुए लोग हैं, जो दुख में है। सुग्रीव तो दुख में था, आरत था, बड़ा दुखी था। और इस वक्त हनुमान आचार्य की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री रामचंद्र से सुग्रीव को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। और इसी मुख पर्वत के ले जाने के लिए हनुमान जी ने राम जी को अपने कंधे के ऊपर सीधे तरफ चढ़ाया, लक्ष्मण को उल्टे कंधे पे चढ़ाया और ऊपर ले गए और ले जाके कहा आप यहाँ विराजो, मैं सुग्रीव को लेकर आता हूँ। सुग्रीव को कहा आपका सौभाग्य, आपका बड़ा भाग है, ये दोनों बाली के भेजे हुए नहीं हैं, और ये तो आपसे मित्रता करके आपका हित करना चाहते हैं। और ये दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण है, चलो चलो जल्दी आपका उनकी अगवानी करके स्वागत करो। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण से सुग्रीव को मिलाया। सुग्रीव अपने और मंत्रियों के साथ आगे आए, और जैसे आगे आए राम जी ने गले मिले। राम जी ने उनको आलिंगन कर लिया सुग्रीव को, मित्र बोला ठीक है, अब मित्र कह दिया है तो मित्रता का। हनुमान जी लकड़ी लाए, आग जलाई और अग्नि को साक्षी रख के एक दूसरे को मित्रता का वचन दिया और कहा हम एक दूसरे के दुख सुख में काम आएंगे। और उसके बाद रामचंद्र से पूछा सुग्रीव ने कि आप कैसे पधारे, तो किस तरीके से हमारे को सीता की खोज में आए हैं। तो तत्काल ही सुग्रीव ने कहा हनुमान तो आकाश मार्ग से जो स्त्री ने आभूषण फेंके थे वो लाइए दिखाएं। और उन आभूषणों को रामचंद्र देखते हैं कि लक्ष्मण को कहते हैं कि देखो भैया ये आभूषण क्या सीता है के हैं क्या। लक्ष्मण कहते पांव की पायल ये तो देवी सीता की है, मैं जानता हूं, बाकी कंठ हार मैंने कभी चरणों से ऊपर देखा ही नहीं सीता को, तो मैं तो नहीं पहचान सकता। राम जी आप देख सकते हैं, है चरण की जो पायल है ये तो सीता की है, मैं जानता हूं। और तब राम जी ने कहा आप सुग्रीव ऐसे यहाँ क्यों रह रहे हैं। तो सुग्रीव ने अपनी पूरी कथा बताई, कैसे बाली के साथ युद्ध करने गए थे, बहुत समय तक बाली गुफा में चला गया, वापस नहीं आया, तो अंदर से खून आया, मैं डर के मारे पत्थर रख के आ गया। मैं वापस राज में आया तो वानर राज मुझे राजा बना दिया। बाली बाहर आया और जब आया तो उसने समझा मैंने उससे धोखा किया है, उसने मुझे मारा। मेरी पत्नी तारा तो बाली की पत्नी है रोमा। सुग्रीव ने कहा मेरी पत्नी रोमा को मुझसे छीन लिया और मैं पूरे पृथ्वी मंडल का चक्कर लगा के उससे बचता रहा। अब ऋषिमुख पर्वत से मैं अपने आप को बचा के बैठा हूँ। तो राम जी ने उस वक्त कहा कि मैं पहले आपके दुख का हरण करूंगा, आप भी पत्नी के वियोग में दुखी हो, आपको अपनी पत्नी दिलाऊंगा, उसके बाद आप मेरी पत्नी की सीता की खोज करना। लेकिन सुग्रीव को थोड़ा संदेह हो गया कि राम जी क्या बाली के साथ युद्ध कर पाएंगे, ये संदेह हुआ। उन्होंने कहा बाली बहुत शक्तिशाली, और एक हड्डी का पिंजर पड़ा था। बोला हनुमान जी दीजिए बताइए इनको कि ये हड्डी का पिंजर बाली ने घुमा के यहाँ फेंका था। ये तब तो राम जी ने पांव के अंगूठे से उसको धक्का दिया, वो कई योजन दूर जाके गिरा। बोला आप में बल तो है लेकिन ये सूखा हुआ हड्डी है, उस वक्त तो इसके ऊपर मांस मचा था, बड़ा भारी था, बाली ने घुमा के भेजा था। बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान परीक्षा दे रहे हैं मित्रता के लिए, मित्रता निभाने के लिए परीक्षा दे रहे हैं।
और हनुमान सेवक होते हुए देख रहे हैं उस वक्त तो अब क्या करें। अभी तक तो हनुमान जी अपने कार्य को शुरू नहीं किया है। जो भी हो किष्किंधा कांड में यहाँ वो उसकी कथा करेंगे तो फिर दूसरी कथा हो जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र ने बाली का उद्धार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिया, उसकी पत्नी वापस दिलाई और बरसात की मौसम में राम जी थोड़े समय कहा कि बरसात पूरी हो जाए तो फिर खोज करना। लेकिन सुग्रीव समय के ऊपर भगवान की सेवा में नहीं आया। हनुमान सावधान हुआ का सुग्रीव तुमने वचन किया है, तुम चारों ओर से वानर सेना को मंगाओ, राम जी के काम में सबको भेजना है। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया। ये दूसरा आचार्य का काम है। हम लोग भक्ति करते हैं, पहले कभी कभी काम पड़ता है, भगवान हमारा अपने शरण में ले लेते हैं, लेकिन फिर जब भोग विलास मिलते हैं तो भगवान भूल जाते हैं। तो फिर हनुमान जी ही आचार्य हैं तो याद दिलाते हैं कि भगवान की सेवा का काम भूलना नहीं है। ये जो वैभव मिला है ये भगवान ने दिया है, उसकी कृपा से मिला है, तो उसको कैसे भूल के फिर आप भूल कैसे गए। फिर भी वो इतने भोग में लिप्त थे सुग्रीव का। ठीक है, आप ही सब जगह मेरा मैसेज भेज दो, समाचार भेज दो कि जो जो वानर जहाँ है वो 15 दिन में सब यहीं किष्किंधा आ जाए। हनुमान जी ने ये कार्य किया। इसलिए हनुमान जी को पहला जो मंत्र कहा था हनुमान जी के मानता का, मनोज्वम मारुत तुल्य वेगम, मनोज्वम मन के समान जिसकी गति है, वायु तुल्य वेगम वायु के समान तेज चलता है। एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रह रहे थे तो सुदर्शन चक्र को बहुत बड़ा गौरव था कि मैं सारे द्वारका की रक्षा करता हूं। गरुड़ को इस बात का बहुत बड़ा गर्व था कि मैं सबसे तेज चलता हूं। और सत्यभामा समझती थी कि मैं सबसे सुंदर और प्रिय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हूं। भगवान को अपने भक्तों के अंदर बड़ाई और अहंकार अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने गरुड़ को कहा कि तुम ऐसे करो, किम पुरुष लोक चले जाओ और हनुमान जी को कहो कि श्री कृष्ण ने बुलाया है। तो गरुड़ पहुंचा किम पुरुष, हनुमान को कहा चलो जल्दी, भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। बोला मैं राम जी की आराधना कर रहा हूं और मैं पहुंच जाऊंगा। बोला पहुंचोगे कब, तुम बंदर कितना कूद कूद के पहुंचोगे, टाइम लगेगा, तुम चलो मेरी पीठ के ऊपर बैठो, मैं तेरे को जल्दी ले चलता हूँ। हनुमान समझ गया भगवान जिस गरुड़ की पीठ के ऊपर बैठते हैं उस पर मैं बैठ जाऊं, इसका मतलब इसको अहंकार हो गया है, भगवान ने भेजा है तो कोई कारण होगा। तो उसने बड़ा जोर लगा चलो चलो। तो हनुमान जी ने उसको पकड़ा ऐसे और ऐसे फेंका समुद्र के अंदर, क्योंकि जहाँ किम पुरुष वर्ष है वो जम्बू द्वीप में है और जम्बू द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। नीचे फेंका, गरुड़ जी को नीचे फेंका और हनुमान जी वहां से निकले द्वारका के लिए। द्वारका में भगवान ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम द्वारका के चारों ओर ऐसी चौकीदारी करना कोई अंदर प्रवेश न करे। और सत्यभामा को कहा कि देवी सुनो, मैंने हनुमान को बुलाया है, वो आएगा तो सीता के बारे में पूछेगा, क्योंकि उसको मैं तो राम का रूप धारण करके उसको दर्शन दूंगा, लेकिन सीता को नहीं देखा क्या तो बड़ा विचलित हो जाएगा। बोला मैं हूं ना सुंदर, क्या फर्क पड़, मैं बैठ जाऊंगी। अच्छा जी। अब हनुमान जी जैसे द्वारका में प्रवेश करने सुदर्शन चक्र कहते अंदर नहीं जा सकते हो। बोला मुझे भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है, वो गरुड़ लेने आया था। बोला मुझे कहा है कोई अंदर नहीं आ सकता। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को पकड़ के दांतों के अंदर दबा दिया और सीधा महल के अंदर आके उतरा। कोई कहते हैं सुदर्शन चक्र तब से चिपटा हो गया है, जैसे जगन्नाथ जी के पास पड़ा है। हनुमान जी ने दबा के उसको दांतों में दबा दिया। अब जैसे नीचे उतरे तो श्री कृष्ण तो चलो राम जी की तरह दर्शन दिया। हनुमान प्रणाम करता है, बोल नहीं रहा है। बोलो बोलो हनुमान कैसे आए, गरुड़ कहाँ है। हनुमान कुछ बोले नहीं। बोलो बोलो। बोलो बोलो क्या, ये सुदर्शन चक्र निकाल के नीचे रखा। अब सुदर्शन चक्र का तो जो बड़ा अहम भाव था कि मैं बड़ा रक्षक हूँ, वो तो बेचारा नीचे बैठ गया। और तब तक भीगा हुआ पंखों से गरुड़ आया, देखता है ये हनुमान उससे पहले यहाँ कैसे आ गया।
अरे ना, मैं तो इसको वहां छोड़ के आया था, मैं पीछे रह गया, ये पहले आ गया। भगवान ने को प्रणाम करके कहता वो किशोरी सीता कहाँ है, ये किसको पास में बिठाया है? बेचारी सत्यभामा देखती देखती कहती है मुझे तो ये समझता है कि कोई यहाँ काम करने वाली है। भगवान ने हनुमान जी को कहा नहीं, आपको मैंने बुलाया था, बहुत समय हो गया, आप किम पुरुष वर्ष में है, तो आपको दर्शन देना था, इन सब भक्तों के साथ मिलाना था। ये सुदर्शन चक्र है, ये गरुड़ जी है, ये हमारी पटरानी सत्यभामा है। तो हनुमान समझ गए कि भगवान ने मुझे क्यों बुलाया था। तो बात कर रहे थे, हनुमान जी का भगवान के साथ बड़ा निकट का संपर्क है और आते रहते हैं कृष्ण के पास भी और कृष्ण के साथ भी हैं। कौन सी कथा से ये कथा बीच में आ गई थी? किष्किंधा कांड में मनुज्व मार तुल्य वेगम, उनका वेग हवा के वेग, बल 4 का वेग तेज होता है कहते हैं। एक तो मन बहुत तेज भागता है, पता नहीं कहाँ कभी चला जाए मालूम नहीं। दूसरा वायुदेव, तीसरा गरुड़ और चौथा हनुमान उनके साथ बराबरी करने वाले वेग से चलने वाला है। बहुत तीव्र गति से चलता है हनुमान और उनके चलने का मार्ग भी अलग मार्ग है जिस मार्ग से वो जाता है। मनुज्व मार तुल्य वेगम जितेंद्रियम, इतना बड़ा शक्तिशाली है लेकिन उसको अहंकार नहीं है, इंद्रियों के ऊपर संयम है। जैसे वानर की इंद्रियां संयम में हो, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। वो तो मुन्ना उछल कूद करने वाला होता है, लेकिन इंद्रियों में इतना संयम हो, कितना इसके इंद्रियों का संयम है। ये जब सीता की खोज में रावण के महल में घूमता है, तब रावण की स्त्रियों को देखता है रात को सोए हुए, और कैसे कोई वस्त्र का काम है, ज्यादा है। उस वक्त हनुमान को विचार आता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये मैं कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ। तब विचार आया कि मैं सीता ढूंढने आया हूँ, तो जहाँ स्त्रियां हैं वहीं ढूंढूंगा, तो मैं तो राम के कार्य को आया हूँ, मैं कोई इनको देखने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य इनको देखना नहीं है, लेकिन यही ढूंढना है, और कहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो लिखा है वहां वाल्मीकि जी ने कि हनुमान जी ऐसी स्थिति में आधी रात को लंका के महल में रावण के संग में कई सुंदर स्त्रियों को देख के भी अपने इंद्रियों को संयम में रख के सीता को ढूंढते रहे। तो जित इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को कितना संयम में रखते हैं। अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हनुमान जी, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, ऐसी जगह में जाने के बाद भी विचलित नहीं होते। प्रभुपाद जी एक बार कह रहे थे, इतने सारे लोग मुझे प्रणाम क्यों करते हैं? सबने कहा क्यों करते हैं, आप महात्माओं बड़े हो। तो प्रभुपाद ने सीधा कहा कि काम इंद्रियों के ऊपर विजय है, इसलिए लोग प्रणाम करते हैं, और विशेष रूप के काम के ऊपर विजय प्राप्त होती है तब लोग सम्मान करते हैं। एक और प्रभुपाद जी के विषय में, टैक्सी में प्रभुपाद जी चढ़े तो ड्राइवर ने पूछा आप स्वामी जी हैं? हाँ। बोला फिर वो जो कीलों के ऊपर सो सकते हैं? क्योंकि बहुत बड़े स्वामी जी होते हैं, बड़े बड़े कीलों के ऊपर सो के दिखाते हैं। बोला कीलों के समान के ऊपर सोना तो बहुत आसान है, मैं इससे भी मुश्किल कार्य कर सकता हूँ। ड्राइवर बोला वो क्या कर सकते हैं आप स्वामी जी? बोला एक बंद कमरे में नगन लड़कियों को रख दो तब भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बेटा जितेंद्रिय की परिभाषा ये, जितेंद्रिय की परिभाषा ये है। ऐसे रामानंद राय थे जो जगन्नाथ भगवान की सेवा के लिए जो नृत्य करके गान करते थे, उनको मालिश करके तैयार करते थे, लड़कियों को मालिश करके तैयार करते थे, लेकिन उसके अंदर कोई विकार नहीं आता था। ऐसा जितेंद्रिय होना, वो शक्ति होने के बाद भी, इतने बड़ा बलवान होने के बाद भी जितेंद्रिय होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में बहुत बड़ा, वरिष्ठ का मतलब सबसे उत्तम बुद्धिमान है। इनकी बुद्धि की परीक्षा देवता भी लेते हैं। जब वो
समुद्र लांघता है तो देवता उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। एक दिन कथा में इसका भी प्रसंग आएगा। बुद्धिमताम वरिष्ठम वात आत्मजम, वो तो वात आत्मजम मतलब वायु पुत्र है। वानर युद्ध मुख्यम, वानरों के युद्ध का सरदार है, बहुत बड़ा लीडर है उनका। वानर सब उनको वानर युद्ध मुख्यम श्री राम दूतम, या राम दूतम का मतलब है दूत किसको कहते हैं, हमारी भाषा में दूत किसको कहते हैं, राजदूत है। जैसे किसी देश का दूत कहीं रहता है, आपको उस देश में जाना है तो उस दूत के पास जाना पड़ेगा तब भेजेगा, मतलब एम्बेसडर। रामदूतम मतलब राम का एम्बेसडर है, जिसको राम के पास जाना है। राम द्वारे तुम रखवारे हो तो ना आज्ञा बिन पैसारे, राम के द्वारे के ऊपर हनुमान खड़े हैं, उसके आगे के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता है। तो रामदूत है, राम से मिलाने वाला है रामदूत। हाँ, वानरा नाम अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, कितना बल है हनुमान में, अतुलित, उसकी तुलना नहीं की जा सकती, इतना बल है कि उसकी तुलना। अतुलित बल धामम हेम शैलावदयम, हेम मतलब हेम कहते हैं वैसे सोने को, सोने के रंग को हेम कहते हैं, और शेल कहते हैं पर्वत को। सोने के पर्वत जैसा शरीर है हनुमान जी का, चमचमाता हुआ सोना है ऐसा उनका शरीर है, और पर्वत जैसा उनका बड़ा बड़ा विशाल शरीर है। हेम शैलाब्जम धनुज्वम कृशानम, धनुज्वम दानों के, जिनको दानों ने जन्म दिया, दानों के जन्म मतलब दानव, दिति ने जन्म दिया वो दैत्य, और दानों ने जन्म दिया वो दानव, दैत्य और दानव। और दानवों के बड़े वन को, जैसे घास को आग लगाए ऐसे विनाश करने की शक्ति रखने वाला धनुज्वम विना अतुलित बल धामम हेम शैलाब्जम धनुज्वम कृष्णानम वानरानाम अधिपत्यम, वानरों के अधिपति। रामदूतम, राम जी के दूत हो, तो बहुत बड़ी शीघ्र गति से जहाँ चलने वाले हनुमान जी है। सुग्रीव को फिर सावधान किया, सुग्रीव ने सब वानरों की सेना को बुलाया और सब वानर इकट्ठे हो गए। उसके बाद श्री रामचंद्र के पास लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर आए। लक्ष्मण भी आचार्य है, क्योंकि वो तो आदि गुरु है, सेवा के भाव से सेवा सिखाने के लिए आए हैं। वो हनुमान और लक्ष्मण दोनों ने सुग्रीव को सावधान करके पुनः राम जी की सेवा में लगाए। तो ये आचार्य का कार्य है कि जीवों को, बेमुख जीवों को फिर वापस भगवान की सेवा में लगाएं। और फिर सुग्रीव ने वानरों को चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में और उसके साथ कोने और सब जगह कहा कि जाओ 1 महीने में सीता का पता लगा के आओ। दक्षिण तरफ जो दल गया उसका अधिपति था अंगद और जामवन हनुमान और बहुत सारे और वीर दक्षिण की दिशा की तरफ सीता की खोज के लिए निकलते। तो हनुमान उस दल में है। और उस वक्त सुग्रीव के सामने राम जी ने हनुमान को अपनी मुद्रिका दी, अपनी अंगूठी दी, जिसके ऊपर राम अंकित था, और ये हनुमान जी के हवाले की, और आशा थी कि यही ढूंढ के लाएगा सीता जी को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो 9 बज रहे हैं, आपको 15-20 मिनट लगेगा, कीर्तन होगा, अनाउंसमेंट होगी, प्रसाद लेंगे, 9:30 घर जाएंगे, प्रसाद खाएंगे, 10 बजे तक घर जाएंगे। कल सवेरे आइएगा, तो यहाँ से आगे कथा करेंगे सुंदरकांड का भी, और हनुमान जी कैसे ध्वजा के ऊपर बैठे अर्जुन की, जैसे जैसे समय के साथ कथा होगी वो करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हनुमान जी जब पहली बार ऋषिमुख पर्वत पे भगवान से मिले थे, उसके पहले भी पूरे जन्म वो राम जी का ही ध्यान करते रहते थे बचपन से, तो ये कैसे? असल में राम जी भी बार बार आते हैं, हनुमान जी नित्य रहते हैं। आज भी हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में राम जी की सेवा कर ही रहे हैं। एक जगह तो हमने लिखा था कि उसके गले में एक ऐसा माला पहनाई हुई थी, राम जी उसको देख के पहचान लेंगे कि मेरा नित्य सेवक है। तो उसके अंजना ने जाते समय उनके गले में पहनाई थी कि उनके पिताजी ने पहनाई हुई थी। हनुमान जी नित्य राम भक्त है। राम तो बार बार आते रहते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन हनुमान जी भी साथ में उनके नित्य सेवक के रूप में आते रहते हैं। लेकिन लीला में उनका सेवा किष्किंधा कांड के बाद शुरू होता है।
लेकिन है नित्य भगवान की सेवक। जैसे वही हनुमान जी चैतन्य महाप्रभु के लीला में मुरारी गुप्ता होके आ गए, और उधर उन्होंने क्या काम किया, चैतन्य महाप्रभु की सारी लीला को मुरारी गुप्ता के कर्चा में डायरी में लिखी हुई थी, जिससे लिखी हुई है। तो जहाँ भगवान का अवतार होता है, हनुमान जी आते ही है सेवा करने, लेकिन राम के नित्य भक्त हैं, उनके साथ ही रहते हैं। उससे पहले हनुमान जी का कहीं मिलने का रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है। एक वर्णन वो मदारी के वेश में शंकर भगवान और हनुमान जी साथ में आते हैं जब रामचंद्र जी का जन्म होता है, और बचपन में जब वो खेलते हैं, एक वर्णन। राम के बाल लीलाओं में हनुमान जी उनके दर्शन करने के लिए शंकर जी के साथ आते हैं। वैसे सारे देवता ही आते हैं। जैसे कृष्ण जन्म में हम देखते हैं कि शंकर जब जन्म उत्सव मनाया जा रहा था तो शंकर जी अपने नंदी को ले आए और पार्वती गणेश को लाई, और नंद बाबा को देखा कि ये गायों को ऐसे आंखें बंद करके दान दे रहा है। शंकर जी को डर लगा कि कहीं मेरे बेल को गाय समझ के दे न दे, तो उसकी पूंछ पकड़ के खड़े हो गए। तो सारे देवता तो आए थे और हाथी घोड़े दे रहे थे। तो उस वक्त माँ पार्वती ने ऐसे गजानन को गले से लगाया। गणेश जो डर लगा कि इसको छोटा हाथी समझ के किसी को दे दे। तो ये देवता सब आते हैं, तो उसमें शंकर जी आए। वैसे शंकर जी का अंश है, शंकर जी तो सदा ही भगवान के ध्यान में रहते हैं, तो हनुमान जी भी सदा ही भगवान के स्मरण में रहते हैं। वैसे शंकर जी का आराध्य देव शंकरषण है, और हनुमान जी का तो सीधा राम है। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हाँ भैया। You said when Hanumanji entered into Krishna's place and then he saw Satyabhama. What happened afterwards? He said, "Where is Sita?" I mean, he belittled Satyabhama that she is not fit to be here. Actually, I wanted to see Sita, and then Satyabhama was really embarrassed. She was, and Krishna was simply smiling. So all the three, they have little ego that we are the best. So Hanuman, Krishna called Hanuman to put them in a humble. He humbled them. Hare Krishna. धन्यवाद। Yes? Well, you are in the morning you are adrishya. Yes. वाली का वध करना सही था क्या? हाँ? वाली का वध जो किया है वो सही था? बाली का बल बाली का वध करना सही था। बाली को मारना, भगवान किसी को मारे वो सही ही होता है। मैंने मारा होता तो गलत होता है। Because Ramchandra said, number one, you are Vanar. So if we have to, when I am Kshatriya, I am representing Bharata, who is the now ruler, and you have actually kept the wife of your brother, so you should have been killed. But this, as a king, it was my duty. But since Kshatriya has to kill the animal behind the tree, so I have used this. So there is a lengthy dialogue between the Bali and Ramchandra. Why you have killed me? And then Bali accepted that you are right, I was wrong, you have done this right thing. And then he said, please only do me one favor. My son Angad, please you take responsibility of him. Bali handed over the Angad to Ramchandra. So he accepted himself that I am wrong. I have done something wrong. Kept the wife of my younger brother. So that was my mistake. Ramchandra has killed Bali, this. Hare Krishna. बाली का उद्धार किया भगवान ने, उद्धार किया।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु। हरे जय। यहाँ जागरण लिखा है, इसका मतलब ये सारी रात आपको बिठाए। किसी ने मुझे कहा है जागरण कोई नहीं आएगा। जागरण का मतलब है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस करनी है। जागरण का मतलब नहीं सारी रात आपको जगाएंगे, जागृता नहीं करना, जागृता नहीं है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस जागरण। Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.